Good morning, everyone. I welcome each one of you in today's 5 a.m. masterclass on cash flow mastery. How are you today? Yes, good morning. Yeah, great. So many people have joined. Welcome, everyone. So I request, fully charged. I request everyone, whenever you reply, please select to all panelists and attendees. तो कई बार टू ऑल पैनलिस्ट करते हैं तो सिर्फ मुझे मैसेजेस सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ऑल पैनलिस्ट एंड attendees. Yes, got it. ठीक है. Today is a very special day. Very special day. Why special day? Today is the first day of the rest of our life. Yes, every morning when we wake up, early morning, whenever we wake up, सुबह उठते हैं ना, फ्रेशनेस और नई जिंदगी. आपको पता है मिस्टर इंडिया की तरह पास्ट लाइफ में नहीं जा सकते, वो चला गया. और आज एकदम फ्रेशनेस के साथ में, जो एनर्जी के साथ में आज हम उठे हैं. एंड टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. तो इस मोमेंट ऑनवर्ड हमें जो करना है वही करना है. वी नीड टू क्रिएट एब्सोल्युटली न्यू. एंड लेट मी टेल यू एवरीबडी, you are such an amazing participant and I acknowledge each one of you. सभी को मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा जो आज सुबह 5 बजे उठकर इस कैश फ्लो मास्टरी के लिए आए हैं. एंड माई प्रॉमिस टू यू, you are going to get best value of the time that you are going to invest now for the next minute. So are you excited for today's session? If you are, then please type excited in the chat box. So welcome everyone. Oh wow. Yes, I am also super excited on this beautiful Navratra early morning. शुभकामनाएं आप सभी को. तो let us start the cash flow mastery. Okay, how to flood your business and life with consistent cash flow. ये है हमारा ऑब्जेक्टिव. तो आपको क्या मिलता है? You get a millionaires and billionaires designed to achieve complete financial freedom without wasting time in trials and any technical dependency. Why? Because I have invested more than 20 years of my life in the area of accounts and finance and cash flow mastery. So I was working around account receivable, account payable, compliances, documentation, cash flow mastery, how to manage the inflow, outflow, and take the business to the next level. I got the opportunity to work with so many business owners in my life. तो आज आपके लिए क्या है? Today, on this special day, you are going to get about 3 big mistakes in cash flow people do and how to fix it. I will be covering that. Yes, यहाँ पर उसके साथ ही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो वाला फ्रेमवर्क जिससे आपका बिजनेस हमेशा 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 एक्सपीरियंस करेगा कंसिस्टेंट कैश फ्लो. राइट नाउ more and more people are joining at this point of time. अब कुछ लोग जो हैं वो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ लोग रेगुलरली 5 AM मास्टर क्लास के अंदर आते हैं. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी to come regularly. Okay, again I request Jai Kumar ji, whenever you are excited, I know, Sanjay Narwal ji, you are excited, I know. तो अब पता क्या है, रिप्लाई करो, मैसेज करो टू ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज ताकि आपके मैसेजेस को सभी देख पाएं. चलो एक बार हम एक चेक करते हैं. लेट मी नो, जो भी आप बिजनेस ऑनर हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं और अदरवाइज और आप आए हैं, लाइक पीपल आर देयर फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट. तो आप मुझे बताओ फ्रॉम विच बिजनेस यू आर. आपका बिजनेस क्या है? लाइक व्हाट बिजनेस यू आर डूइंग? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ समथिंग समथिंग, ट्रेडिंग ऑफ समथिंग समथिंग एंड सर्विस. just tell me in the chat box the business you are into. तो यहाँ पर ताकि हम आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है, जस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, आप बिजनेस के बारे में लिखो, लाइक राइट.
रेडीमेड गारमेंट्स वाले भी हैं, कंस्ट्रक्शन वाले भी हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग वाले भी हैं, कंप्रेसर के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर, casting chain of medicals, like people from the various business groups are here. तो अब ना जो मैं कैश फ्लो के बारे में आपसे एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ, थैंक यू पार्टिसिपेंट, आर्किटेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर एसेसरीज एंड manufacturing of corrugated boxes or real estate services and variety of services, tourism. तो ओके, एस डी खन्ना जी आप भी हो, वाओ अमेजिंग, ग्रेट, आज तो फिर स्पेशल डे होने वाला है। ग्रेट, वेलकम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम। चलो अब और भी पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है, राइट। देखो ऐसा है, अभी हम बात करने वाले हैं आपसे उन तीनों एस्पेक्ट के बारे में जिससे कि आपके बिजनेस के अंदर अबंडेंस ऑफ कैश फ्लो जनरेट होता है एंड यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। लेट मी गो देयर। कैश फ्लो मास्टरी 3.0, एक स्पेशल गिफ्ट। अब देखो, आप सुबह सुबह आप आए हो 5 बजे, तो जो अपना टाइम आप मुझे मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम टू लर्न समथिंग रियली ग्रेट एंड न्यू, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट ये लेकर आया हूं कि 1 डे की कैश फ्लो मास्टरी 3.0 में आपको दे रहा हूं। इट इज अ लाइव ट्रेनिंग ऑन कैश फ्लो मास्टरी जिसका प्राइस 10,000 होता है, लेकिन यू आर गोइंग टू गेट अ फ्री टिकट बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम। अच्छा, ये उन सभी को मिलने वाली है जो 90 मिनट इस सेशन के अंदर मेरे साथ रहेंगे अप टू 6:30, और जिन्होंने पास्ट में भी मास्टर क्लास अटेंड की है। तो उपासना इज गिविंग दिस टिकट टू एवरीबडी, और इसकी डेट ना 25 की जगह 28 है, 28 क्योंकि दशहरा है संडे को। तो देर वॉज सम, बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार दशहरे वाले दिन मत करो जगमोहन, इसको ना आगे कर लो। तो 28 को, so you are going to get that special day, 1 day full day ticket. Now you will be there up to 6:30. Welcome. सीधा ना टॉपिक के ऊपर आते हैं। द टॉपिक 3 big mistake. Now what are those? कैश फ्लो के अंदर वो जो तीनों बड़ी मिस्टेक हैं, आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे क्यों बता रहा हूं ये वाला बात? ये मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं कि क्या होता है कि बिजनेस हम कर रहे हैं बिजीनेस, बिजी बिजी बिजी, और काम करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हम कुछ गलत कर रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। कई बार साल 2 साल बाद 3 साल बाद ट्रायल एरर, हिट एंड ट्रायल और एक्सपीरियंस करने के बाद हम कहते हैं कि ओके नाउ आई गॉट द रियलाइजेशन। नाउ व्हाट आर दोज 3 एरियाज जो कि एक रोड ब्लॉक की तरह काम करता है हमारे कैश फ्लो मैनेजमेंट के अंदर। तो अगर वो दूर हो जाए रोड ब्लॉक, तो रॉकेट की तरह हमारा कैश फ्लो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आज का मैं ये नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, जिसको मैं एक बड़े ही डिफरेंट एस्पेक्ट से प्रेजेंट करने वाला हूं। नाउ व्हाट इज दैट? नंबर 1, on account payment. The first mistake we are doing in the business is we are making on account payment, जिसे बोलते हैं ना लम सम पेमेंट। अच्छा, ये ना सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है बिजनेस की ग्रोथ के लिए, कैश फ्लो के लिए। आप बोलो यार वो कैसे? ऑन अकाउंट पेमेंट जो है वो रोड ब्लॉक कैसे हो गया? पहला रीजन, ये सबसे बड़ा रीजन है। कौन सा रीजन है? परचेज कर लिया, फिर और परचेज कर लिया, अब उसको बोला चलो 50,000 पे उसको ऑन अकाउंट पेमेंट कर दो, आरटीजीएस कर दो, 1 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, राउंड फिगर हमने उसको पे कर दिया। That result in one of the biggest problem in the accounts department, and that is called reconciliation. अब हमारी अकाउंट्स की टीम क्या कर रही है? मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं एज ए ऑडिटर भी किसी कंपनी के अंदर बैलेंस शीट को फाइनलाइज कर रहा होता था, आप भी देखेंगे कि अभी 31 मार्च की रिटर्न, जिसकी ऑडिट की डेट 31 अक्टूबर है, लोग फाइनलाइज कर रहे हैं, अभी भी फाइनलाइज कर रहे हैं। और सबसे मेजर आइटम क्या है? रिकंसिलिएशन। किसकी रिकंसिलिएशन? जो हमने पार्टियों के साथ में बिजनेस कर रहे हैं। चलो, अरे रिकंसिलिएशन करते 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 कितना समय लगाएंगे हम, कितना समय लगाएंगे? पूरी की पूरी लाइफ ही इन्वेस्ट हो रही है रिकंसिलिएशन के अंदर, और कितना टाइम इन्वेस्ट हो गया
जो कि फाइनेंस और अकाउंट के एनालिसिस को करने में लगाया जा सकता था, प्रॉफिट को बढ़ाने में लगाया जा सकता था, कैश रिच बिजनेस करने को लेके आया जा सकता था। तो टाइम लगा दिया, चलो टाइम भी लग जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इसकी वजह से सेकंड बड़ी परेशानी क्या होती है, एक ना खटास पैदा होती है हमारे वेंडर के साथ में। वेंडर बोलते हैं कि जब मैंने आपको बिल दिए और पेमेंट की बारी आई, मेरा मान लीजिए 22,10,300 रुपए का बिल बनता है, टोटल अमाउंट बनता है, या चलो किसी का 1,37,210 का बिल बनता है, हम कहते हैं 75,000 दे। उसके कैश फ्लो पे इंपैक्ट आया, हमने उसको ऑन अकाउंट पे कर दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं उसको लगता है कि शायद ये डिडक्शन कर दी उसने। अगर डिडक्शन नहीं भी की तो उसको मालूम है कि फ्यूचर में जब आऊंगा तो कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई चीज ऐसी निकाल देंगे जिसकी वजह से पेमेंट फंस जाएगी। तो वेंडर भी क्या करता है, उन पार्टियों से डील नहीं करना चाहता जो कि पेमेंट के बारे में बड़ी चिक चिक करते हैं, और उसको मालूम है कि यहां से पेमेंट निकालने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। और ओके, एंड विजय जी कह रहे हैं इंग्लिश प्लीज, ओके लेट मी यूटिलाइज इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ओके राइट। देन वेंडर स्टार्ट फीलिंग that the company with whom I'm dealing with is not that ethical company. They have deducted my payment, and they are making on account payment, and lump sum amount has been paid to me. So the true relationship between the vendor and the supplier, like the supplier of the business owner, do not remain on the same pace. चलो ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। इसके अंदर तीसरा एक बड़ा ही खतरनाक एस्पेक्ट है। वो एस्पेक्ट ये है कि whenever you are making payment on account, the system that you are making, that every week I will be making a payment, or every month I will be making a payment, or twice in a month I will be making a payment, that system never get established. Why? Because the payment report should get generated from where? From the accounting software. The moment you generate that report, since there are on account payment has been recorded in the books of account, that result in the inaccurate generation of the account payable report, as a result of which in your books of account all the time whatever the bill that has been entered in the books of account, वो ऐसा लगता है कि सारे के सारे ही payable है. It appears that all the bill that has been recorded in the accounting software are payable. Now, tell me, how will you take a track of all those aspects? Now, when we are talking about the working capital, in the working capital, we want to keep our credibility on the top and want to make payment as per the payment term. Then if you are making the payment as per the own account, then how will you be able to keep the record of the track of the payment that you are making? No, no, it will not be possible. Credibility is on stake. Credibility on stake. There is a chances that certain payment you are making ad hoc basis as and when, and every day you are worried, and sometimes some good supplier कुछ अच्छे supplier हैं जो कि आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन ये रिकंसिलिएशन का इशू, टाइम पर पेमेंट ना आने का इशू, और जब भी फॉलोअप करो तो कुछ पेमेंट रिलीज कर देने का इशू, ये हमारी क्रेडिबिलिटी को एकदम खत्म करके रख देते हैं। श्वेता जी ने कहा प्लीज एक्सप्लेन अगेन, तो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। श्वेता जी, आप ना जब भी रिप्लाई करें टू और पैनलिस्ट एंड अटेंडीज करें, ओके। तो मैंने ये आपसे बोला कि सबसे पहली मिस्टेक हम क्या कर रहे हैं, ऑन अकाउंट पेमेंट कर रहे हैं। किसी का बिल आया 10,000 रुपए का, फिर 8,000 रुपए का, फिर 22,000 रुपए का, हमने उसको लमसम 20,000 रुपए की पेमेंट कर दी। तो उससे क्या क्या इशू क्रिएट हुए? पहला इशू ये क्रिएट हुआ रिकॉन्सिलिएशन का इशू। रिकॉन्सिलिएशन के इशू का क्या मतलब होता है? दैट मीन टू से कि दिवाली के दिवाली बैठते हैं साल के अंदर एक बार, और फिर कहीं जाके हिसाब टैली होता है, एंड बिजनेस लायबिलिटी इज अनकंट्रोल्ड। व्हेन एनी अनसर्टेनिटी इज देयर इन द कैश फ्लो, यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन अ प्रॉपर कैश फ्लो टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल। ओके, इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि ऑन अकाउंट पेमेंट का
बिजनेस के ऊपर बड़ा ही भयंकर इम्पैक्ट है। कैसे इम्पैक्ट है? क्योंकि बिल बाय बिल पेमेंट नहीं कर रहे। नाउ दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन। सो व्हाट द पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग हियर इज कि जब आपके पास कोई परचेज की या एक्सपेंस का बिल आया, तो वो आया 8,340 रुपए का, तो यू हैव मेड द पेमेंट ऑफ 8,340 एज पर द ड्यू डेट। अच्छा, उस पार्टी का नेक्स्ट बिल आ गया, नेक्स्ट बिल आ गया, एक और नेक्स्ट बिल आ गया। कितने भी बिल उस पार्टी के आ रहे हैं, जब आपके पास वो बिल आ रहे हैं आपके पास, तो व्हाट यू नीड टू डू, you need to make the payment bill by bill. How many of you are using bill by bill payment in your accounting system? If you are using bill by bill payment in the accounting system, then please type yes in the chat box. And those who are not able to do bill by bill and they are making ad hoc payment, then please type no. Got it? Yes, no, no, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. और बोथ वाले भी हैं, कुछ की ऑन अकाउंट भी है, कुछ की बिल बाय बिल भी है। सी, बिल बाय बिल पेमेंट ना करना इज अ मिस्टेक, यानी कि अकाउंट पेबल को जो आपने पे करना है वो कैश फ्लो के अंदर वो मिस्टेक कहलाती है। जो ऑन अकाउंट पेमेंट भी करते हैं उसके अंदर आपके पास एक हो सकता है एडवांस का सिस्टम है और उसकी एक रेफरेंस जनरेट होती है, या आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा अगर आप ऑन अकाउंट के लिए एक आपने राउंड फिगर की पेमेंट की, तो उसको ईयर मार्क तो करोगे ना किस बिल के अगेंस्ट में कितना है, meaning thereby कि every accounting software, now I request everybody to explore, sit with your accountant, ask your accountant, show me the aging report, show me the vendor aging report. If you are able to get accurate aging report of the vendor, then your system is absolutely perfect. What is the acid test? The acid test is that you are able to generate accurate vendor payable report, so that the vendor, the payment for which is not due is visible, for which it is due from 1 to 30 days or more than 30 days as per the payment term, that need to be get generated from the accounting software itself. नहीं तो हम ये नहीं करने वाले कि बैठकर हम एक बार रिकंसिलेशन का हिसाब किताब करेंगे, उसके बाद तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करेंगे, फिर कुछ गलतियां होंगी, फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट संभालो करो, जीएसटी का रिवर्स। जीएसटी के अंदर भी इशू आता है, अगर आपने किसी परचेज की पेमेंट विद इन 180 डेज नहीं की हुई तो वो जीएसटी का क्रेडिट रिवर्स होता है, देन यू गेट ऑडिट ऑब्जेक्शन, देन यू गेट सो मेनी रिकॉन्सिलिएशन इशू। द एस्पेक्ट इज से नो टू ऑन अकाउंट पेमेंट। अगर किसी का पेमेंट 48,380 का बनता है तो मेक अ पेमेंट ऑफ 48,380, यानी कि पिछले छोटे छोटे बिल को कंबाइन करके जो अमाउंट बना उसका एक सिंगल चेक आप इशू करो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बिल का एक चेक इशू करना है या आरटीजीएस करनी है, बट आई एम सेइंग कि ऑल प्रीवियस बिल विच आर ऑलरेडी ड्यू कंबाइन दैट एंड मेक अ पेमेंट। इफ दैट मच पेमेंट इज नॉट अवेलेबल टू यू, then the oldest outstanding bill that need to be paid, this is the ultimate aspect. Why am I telling you to that is that to really operate cash flow on the optimum level. Okay, second aspect is चेसिंग एवरी डेटर। ये तो मैंने बहुत देखा है, ये तो मैंने अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर बहुत ज्यादा देखा है कि हम कंपनी बस भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कौन से पैसे के पीछे भाग रहे हैं? जो भी हमने उधारी पर सेल कर दी, बस सेम लेवल की ट्रीटमेंट हर एक डेटर के साथ में करते हैं कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देर आर थ्री कैटेगरी ऑफ डेटर। वन इज ग्रीन कैटेगरी, जो कि आपको हमेशा टाइम पर पेमेंट देते हैं। येलो कैटेगरी, जो कि रिमाइंडर के बाद में पेमेंट देते हैं। रेड कैटेगरी, जहां पर चिक 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 चलती रहती है। अब रेड कैटेगरी हो सकता है कि आपकी 20% हो,
लेकिन उसका ह्यूज इम्पैक्ट आता है आपके 80% पोर्शन के ऊपर। जो भी कलेक्शन कर रहा है डेटर्स के लिए कलेक्शन इंजन, वो सभी को एक जैसा ट्रीट करके वैसा ही करते हैं। जो भी अपनी भड़ास, वट एवर द एंगर इज देयर फॉर द रेड कैटेगरी ऑफ डेटर, यू आर पुटिंग दैट फायर ऑन योर नॉर्मल डेटर एज वेल, क्योंकि समझ ही नहीं आता। बिकॉज वेन एवर वी लुक एट द लिस्ट ऑफ द डेटर वी से ओ माई गॉड, इतने सारे पैसे डेटर्स में खड़े हैं, ये मेरे पैसे क्यों नहीं आ रहे। नाउ टोटल फिगर को जब आप डेज में कैलकुलेट करते हैं, you find that your debtor period should be say 30 days, but because of the total outstanding it is coming out to 67 days in totality. That means to say now what to do, now fire someday one day। जब भी बिजनेस के अंदर कोई कैश क्रंच होता है, जब भी फंड की रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं, डेटर्स की तरफ देखते हैं और उसके बाद उस स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। दैट अगेन इम्पैक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी। दैट इम्पैक्ट पहली बात तो कलेक्शन करते ही तब है जब बिजनेस के अंदर पैसों की जरूरत होती है। नहीं तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे पैसे, कोई नहीं कर देना पेमेंट, बथेरे पैसे है। तो गुड सीजन के अंदर अच्छे पैसे आ रहे होते हैं, बैड सीजन के अंदर हम अपनी रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं। और अगर हमने कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को लगाया भी है तो उसका प्री कंसीव्ड नोशन हो जाता है। क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द कंपनी आई हैव सीन दैट वेन एवर यू आर मेकिंग ए कॉल फॉर द कलेक्शन, व्हाट पीपल आर डूइंग, they have a name of the customer and they have the amount to be received from them. Simply make a call or send a mail and then और कुछ लोगों ने तो एक स्टेन गन लगाई हुई है। वो कौन सी है, व्हाट्सएप के ऑटोमेटिकली ठा 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 मैसेज चले जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद डेटर को भी समझ आ जाता है कि चलो इन्होंने कोई कोर्स किया होगा और ये बस इस टाइम पर मैसेज आते हैं, आने दो मैसेज, ये तो ऑटोमेटिकली आते हैं। तो दैट रियली डज नॉट वर्क, दैट रियली डज नॉट वर्क। शुरू में कुछ समय के लिए वो काम करता है, लेकिन उसके बाद काम करना बंद कर जाता है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर वेरी इंटेलिजेंट। और इधर से एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा डेटर्स को लेके बढ़ता चला जाता है कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं आ रहे। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद मी ऑन दिस पॉइंट दैट collection become a headache, collection become an issue, collection become something which is very serious. How many of you can relate, how many of you can relate with me on this point? And this area is the single most area for a bad relation with the customers. Yeah, thank you. Yes, you are able to relate with that. Now what is the solution? Solution is very simple, and let me tell you, solution is very simple and solution is available to you, solution is known to you. Yes, but are we consistently following that? Let me tell you, the real very basic aspect of the solution in collection. It is a game changer. Now what is that? Very simple, debtor aging report. Debtor aging report, this report need to get generated automatically from where? This report need to get automatically generated from your accounting software. Yes, Siddharth Sharma ji is saying that collection have made us lose more than lose customer. Yes. That is an area. So my recommendation, my suggestion based upon the experience, to bring a complete peace of mind in your area, in the field of collection, what you need to do, number one, trust your accounting software. In that accounting software, make bill by bill transaction. Whenever any amount is received from the customer, that is being entered against that bill, and at a single click you are able to get a debtor aging report, which is called account receivable aging report, in which this company need to receive 2,950 in totality. The current means 200. 200 are those amount which are not to be received from the customer. Why? Because the bill has been made recently. If the payment term is say 30 days, if recently you have made a payment, that means to say no payment will become.
this is a running, this is a before due date. Now, how much is 1 to 30 days, and 31 to 60 days, and 61 to 90 days, and over 90 days, and the total amount? If your payment term is 90 days, then you will write current 0 to 90 days, 90 to 120 days, and more than 120 days. It means when it become overdue above your payment term, so you need to give a slab for next 1 month for that. That means to say, for every category, we need to make a separate strategy. That means to say, if customer is not making a payment to me and it is overdue, see, let me tell you, look at the report once again. What I'm saying, this is overdue. Rupees 200 is only the amount which is not due. Rest of the amount that should have been there in your pocket, but that is overdue by 30 days or 60 days or 90 days or more than 90 days. कि पैसे नहीं आ रहे, 30 दिन हो गए पैसे नहीं आ रहे, 60 दिन हो गए पैसे नहीं आ रहे, 90 दिन हो गए पैसे नहीं आ रहे. इट इज ओवरड्यू रिपोर्ट. अकाउंट पेबल एजिंग रिपोर्ट के अंदर मैंने ओवरड्यू निकाला है, मीनिंग देयर बाय now for every category you need to see for that particular company also. जैसे कंपनी एबीसी है, उससे टोटल पैसे कितने लेने हैं, उससे 600 लेने हैं. 200 रुपए तो उसके करंट है, यानी कि अभी पेमेंट का टाइम नहीं आया, लेकिन 400, this 400 amount is the amount which is overdue within 1 to 30 days. People when make debtor aging report, what they do is there only one name appear. See, again, once again, look at the report. For the same company, bill wise bifurcation has been made. That is a game changer. Now, what is that bill? That means to say, if that party is not making a payment to you, and again you are supplying, again you are supplying, again you are supplying. If you are not getting the payment, my dear friend, अगर आपको 10 लाख रुपए नहीं आ रहे थे, आपने 5 लाख रुपए की और उसको सप्लाई कर दी, तो 15 लाख नहीं आएंगे. And then you made one more supply, 20 लाख नहीं आएंगे. Then you made one more supply, 25 लाख नहीं आएंगे. What is the point in that? Some people are intelligent, and every people are intelligent right now who are appear in 5 a.m. All intelligent and unique people are here, which are there on the unique time of 5 a.m. They are easily able to relate and understand. For a single company, for example, XYZ LLC, I need to receive 600 from that. There is nothing current. I have raised 2 bills to them. अच्छा, कुछ हिंदी बोल दो, कुछ इंग्लिश बोल दो. चलो फिर हम बनाते हैं जरा खिचड़ी. Okay, let me create that खिचड़ी. How many of you interested in this two linguistic language? So should I mix it? So all those who are interested in Hindi, please type Hindi. Those who are interested in English, please type English. And those who are interested in mix, and type mix in the chat box. Let's make it a little amazing. So Hindi, English, mix, Hindi mix. Aha. So let me present you. Aha. So comfortably. Punjabi. Okay. So you want the Punjabi tadka mix as well. Okay. As per your flow. I got this point. Vikram Chavda ji, now I really got it. Thank you for bringing me back to my flow. Okay, right. So what am I going to do is that मैं ना उस पूरे flow के अंदर जाने वाला हूँ. Thank you. In which I will be using all the 3 languages. The point here is not the language. The point here is कि are we able to relate heart to heart and able to understand the point? ये point ना आपके सामने मैंने लिख के रख दिया है. वो point क्या है? वो point ये है, अकाउंट एजिंग रिपोर्ट इज द सॉल्यूशन. क्या हो रहा है कि हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, डेटर की लिस्ट को देखते हैं, देयर इज सो मच ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड वी आर चेसिंग every amount outstanding in the books of account and left with the frustration.
We are sending WhatsApp messages, we are sending email, we are making bombardment of call, and the person receiving those call becomes so much of irritated that he say, "Yaar, they don't know people what they are asking for, which bill they are asking for. I have sent a debit note for that. I have asked for something for that." Because no proper homework has been done, अपनी collection के बारे में proper homework नहीं किया, तो क्या करना है? होमवर्क ये करना है, जो मिस्टेक लोग कर रहे हैं वो अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट नहीं बना रहे। व्हेन आई से अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट, आई मीन टू से लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो कंपनी का नाम, लिख लिया कंपनी का नाम। अब देखो इस कंपनी के कौन कौन से बिल हैं, जो कि हमने बिल तो इशू कर दिए लेकिन अभी वो ड्यू नहीं हुए, यानी कि बिल वाइज ड्यू नहीं हुए। 200 रुपए, 200 रुपीज इज नॉट ड्यू। अच्छा, देर आर सर्टेन बिल विच आर ओवर ड्यू 400। That means to say my strategy with that client will be different, with company ABC will be different, with UVWINC my strategy will be different. Can you see? I need to receive 1750 from UVWINC. Total amount that I need to receive is 2950. More than 50% amount is outstanding from UVW, which is overdue. And I am putting all my pressure on the कंपनी एबीसी के ऊपर पूरी जान लगा दिया। सर पेमेंट नहीं देते, ऐसे ही करते हो, मुझे नहीं पता, पहले पैसे दो। अरे भैया, जान लगानी थी यूवीडब्ल्यू के ऊपर। उसके अंदर भी जो बिल 250 रुपए का ओवरड्यू हो चुका है या 500 रुपए का ओवरड्यू हो चुका है, हमें ना उसके ऊपर बात करनी थी। तो क्या हम अपने कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को उस तरीके से ये वाली रिपोर्ट अवेलेबल करवा पा रहे हैं, बिल वाज आउटस्टैंडिंग? दैट इज द गेम चेंजर व्हेन यू विल डू दैट। अरे सारे के सारे क्राइटेरिया है ना। सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले तो क्या है, आपने जब पेमेंट की कलेक्शन करनी होती है तो पार्टी से शुरू में ही कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी हो जानी चाहिए कि वी आर अ सिस्टम ड्रिवन कंपनी, और पेमेंट जो है एज पर दी पेमेंट टर्म आनी चाहिए। एथिकली हो गया उनसे बातचीत। टाइम टू टाइम उनको एजुकेट भी करते रहो, उनको ना एजुकेटिव मेल भेजो, उनको 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 वो वाली वीडियो बनाओ, अपने कंपनी के प्रोसेसेस के बारे में बताओ। एजुकेट देम, एजुकेट योर कस्टमर, दे विल लाइक योर सिस्टम। Don't just follow and pressurize them for the payment. Educate about the system. Okay, once it is educated, then you need to make ensure that there has to be a payment reminder in terms of a WhatsApp or an email. Then there need to be a call, and the call, if there is any technical issue, that need to be resolved with the help of the collection coordinator and that technical person, and issue based. If there is a problem in the one bill, it should not so happen that all the payment has been hold, सारे पैसे रोक लेते हैं एक बिल के चक्कर के अंदर। रिकंसिलेशन के अंदर कोई क्वालिटी का इशू है, वहां पर बिल बाय बिल सॉर्ट आउट करो। जो बिल डिस्प्यूटेड है उसको ईयर मार्क करके अलग करो, बाकी की पेमेंट कलेक्शन करो। नहीं तो आगे चलो। अब वो ओवरड्यू हो गया है तो कंपनी के लेटर हेड के ऊपर एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग सा लेटर भेजो कि उसका क्या इंपैक्ट आएगा। कंपनी के लेटर हेड से नहीं बात बनी, अब चलो 180 डेज से ऊपर के चले गए हैं, वकील के लेटर हेड पे भेजेंगे। वकील के लेटर हेड पे भी नहीं चलती बात, तो फिर ऊपर आउटस्टैंडिंग जा रहा है तो कोर्ट के लेटर हेड के ऊपर भेजेंगे। कोर्ट का लेटर हेड मींस हम वो वाला एस्पेक्ट करेंगे, कोई चेक था बाउंस करा के उसके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐड करेंगे, नहीं तो रिकवरी एजेंसी को देंगे। अब ये सारे के सारे प्रोसेसेस हैं, एजुकेशन से लेके रिकवरी एजेंसी। लेकिन कौन से डेटर पे किस तरीके से हमने वो काम करना है, दैट नोबडी इज गिविंग केयर एंड अटेंशन, एंड वी आर मेकिंग अप आवर माइंड every time we are giving a signal to our mind that people are bad, people do not make timely payment on account of few people in the red category which make a chick chick, and then those who make a chick chick, we put everybody in the same category. Are you able to relate with my point that we are putting everybody in the same category? और दिमाग में ना, हमारे दिमाग के अंदर, लेट मी टेल यू, आवर ब्रेन कंसिस्टेंटली थिंक, if one of the customer is not making a payment, that customer occupy the maximum proportion of our mind. We are thinking about that customer day and night. ऐसे कैसे पेमेंट नहीं की, ये कैसे रोक लिया, वो कैसे हो गया। 80 to 90% of the time that person remain. If there is a heated communication with that customer and that our body react according to that,
I have seen many business owner, they are basically sabak sikhane mein lage hue hain to teach a lesson to those person who are not making a payment, and they are making their life hell and they are making their own life hell. कोयला हाथ में पकड़ा हुआ है, कोयला हाथ में पकड़ा हुआ है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके मुंह पे मारूंगा, लेकिन गरम गरम कोयले से हाथ जल किसका रहा है? हमारा जल रहा है. How many of you can relate with me on this point? If you are able to relate, then tell me what is coming in your mind. What is coming in your mind when I talking about the collection area? Just share in the chat box what is getting appear in your mind. Yes, true. Yes, you are thinking today is a 5 a.m. In the 5 a.m. in the 5 a.m. special day, very special day. Most of the business owner and financial controllers life is burning on account of this area for few bad chick debtors. आज ने ट्रांसफॉर्म करना है. आज जो सबसे बड़ा लेसन हमने ये लेकर जाना है कि जैसे एस डी खन्ना जी ने कहा, ऑर्गेनाइज माई ओन होम. हमें अपना घर बढ़िया बनाना है. जहां से कलेक्शन नहीं आ रही है, वो क्यों नहीं आ रही है, उसके रूट कॉज को एनालाइज करना है. वी नीड टू एनालाइज रूट कॉज and consistently upgrade our own system. One of my client learned few lessons. Lesson number one, he learned, whenever I make a supply to startup, 50% of my payment get on hold. So my payment terms with startups will be advance or against LC. This is what he learned. He learned that whenever he make a payment to the government agency, there is a credit period of 6 months. I need to have a sufficient backup to make a supply to the government companies. That way, you need to devise your own aspect. Now, do I have the sufficient backup of the working capital to the customer am I making? And what are my payment terms for those customer? I'm sure you are getting this point. And whenever you are analyzing your data, जब भी अपने data को देखना है, उसको किस में देखना है आपने? अपने debtors को हमने देखना है debtor aging report के अंदर, which will get created from your accounting software on a weekly basis. That is called weekly MIS. Only 10 minutes to be invested. How much? Only 10 minutes to be invested on looking at the figures of the debtor aging. MIS report must have this parameter, debtor aging report. People are not looking at that. And the point which I have made to you, it that your brain, आपका दिमाग ना बिल्कुल भी नहीं उस जगह को ऑक्यूपाई करेगा, उन्हीं डेटर्स के बारे में सोचता रहेगा कैसे सबक सिखाना है. आपका दिमाग सोचेगा कि मुझे अपना सिस्टम कैसे इंप्रूव करना है, उसको कैटेगराइज करके जो ओवरड्यू पेमेंट्स हैं उनको क्या मुझे सप्लाई बंद करनी है, उनके साथ में मुझे एक स्पेशल रिकवरी का एस्पेक्ट प्रारंभ करना है, या अपने बिजनेस के मॉडल को चेंज करना है. दिस इज, और कैसे करेंगे? जस्ट लाइक अ साइंटिस्ट हु यू आर अ साइंटिस्ट. व्हेन यू डू समथिंग, some result come. Hydrogen 2, oxygen 1 become the water. पानी बन गया. अच्छा, हाइड्रोजन के 3 डाले हुए हैं, पानी बन नहीं रहा है. एज ए साइंटिस्ट अपने डेटर को वीक बाय वीक एनालाइज करते जाओ, और डेटर एजिंग का जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है, दिस फॉर्मेट you may utilize for having control on this area. And Shiv Sharma is saying, what about lump sum amount aging? See, whatever the amount we are receiving in lump sum, that need to be adjusted on a FIFO basis in your accounting software. Oldest bill to be adjusted, and then accordingly you need to go ahead. That is the only method of doing, because when you are making the payment, you can control yourself to take care of the lump sum payment. But when you are receiving the payment, तब क्या करोगे आप? तब तो आपको FIFO basis follow करना है. That is the second aspect. Okay.
अब आते हैं सबसे बड़ा पॉइंट विच आई रियली वांट टू मेक इन फ्रंट ऑफ यू, द थर्ड मिस्टेक पीपल आर डूइंग. आर यू इंटरेस्टेड टू नो दैट थर्ड biggest mistake in the cash flow people are doing? See, in the second mistake, what was happening? That debtor was occupying more than 80% of the creativity of your brain, and that put you into the anger. What was the first point? In the first point, it was resulting in a reconciliation issue and loss of credibility. Now, this third issue, human behavior. Third issue, human behavior. Now, look at this, wrong basis of payment. Cash and bank opening balances. This is absolutely a wrong basis for deciding to whom to make a payment. अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. लोग सोच रहे हैं बैंक का और कैश का बैलेंस देखते हैं सुबह, हाउ मच इज द बैलेंस अवेलेबल विद मी इन माय बैंक अकाउंट. ओके, इसको पेमेंट कर दो, उसको पेमेंट कर दो, make a payment, make a payment, make a payment. Look at the bank statement. If there is fund, make a payment. If there is no fund, not to make a payment. This is their basis of payment. For last so many years, businesses are following this strategy, and those businesses are never growing. Huh? Oh yes. See the coincidence. All those businesses who are making payment to their supplier for the expenses based upon the balance available in their bank statement. Okay, make a payment of 10,000. How much is there? 5 lakh. Okay, plan for 4 lakh. Make the payment of 4 lakh or 5 lakh, and like that. वो ग्रो ही नहीं करेंगे, वो ग्रो कर ही नहीं सकते. वो क्या करेंगे, वो उसी ट्रैप के अंदर रहते हैं. दे आर इन टू द सेम ट्रैप. Their turnover is always in the same range. Like if somebody is making a turnover of 10 crore in a year, then it will be 10 crore for next many years. It can be 10 crore, 11 crore, 12 crore, 13 crore, or maybe within the bracket of 10 crore to 20 crore. They are not able to grow. When they had started the business, their turnover was increasing. 5 lakh, 10 lakh, 50 lakh, 1 crore, 5 crore, 10 crore. They were growing like anything. And then they come into a vicious circle. There are certain businesses who hit the turnover of 100 crore, but they are into the vicious circle of 100 crore. Some people are there. Whatever the vicious circle get created for you, that get created for you. One of the reason, not all the reason, one of the reason is that the financial controller or the business owner, whenever he is making payment to somebody, वो अपनी स्टेटमेंट लेके सामने बैठते हैं बैंक की, किसको कितनी पेमेंट निकालनी है वो लिस्ट लेके बैठते हैं, एक्सेल की शीट बनाते हैं. एक्सेल की शीट बना के देखा कि हाँ जी कितने पैसे अवेलेबल हैं, 22 लाख रुपए. कितनी पेमेंटें करनी है, 35 लाख रुपए. इसको कर दो, इसको कर दो, इसको रहने दो, इसको कर दो, इसको कर दो. हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट विद मी ऑन दिस पॉइंट? इफ यू आर एबल टू रिलेट, देन प्लीज टाइप रिलेट इन द चैट बॉक्स. Please type relate in the chat box if you are really able to relate with me on this point, or if you have any point to state, you can type in the chat box. Most of you are able to relate. Yes, my dear friend, yes, it is true. This is how we are in the vicious circle of cash flow trap. On the one hand, we are making ad hoc payments. On the other hand, we are burning in the area of money and chasing people like anything. पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो. At the same time, whenever we need to make a payment, we look at our bank balance. That is the reason most of the businesses having ODCC limit, touching, kissing the limit. If the limit is 5 crore, it is 4 crore 90 lakh 99,000. Touching the limit. Right. So, what is the right way of doing the business? The right way of doing the business, the right way basis is, I'm going to present you, and that is cash flow model. My dear friend, right basis is cash flow model. We really need to look at the comprehensive view. We really need to look at the comprehensive view. कि भाई जो मैंने पेमेंट करनी है, पेमेंट इज ऑलवेज प्लान्ड
Today you cannot decide that how much is the bank balance available. It need to be planned over a period of time based upon certain basis. For that, you need to implement what? Cash flow model in your business. This cash flow model can be implemented in your accounting software, your own accounting software. This can be implemented. If you are not able to implement that in your accounting software itself, then you can make it on a Google Drive or Excel sheet, like whatever the way. There has to be basis. Okay, let me give you one very beautiful aspect, and that one is, let me open the treasure of finance. मैं आपके सामने खोलता हूँ treasure of finance. So let me open one GSA online. GSA online. So here we go. So this is GSA online, and let me show you one of the format. So I go to open GSA online and I go to the registered ID. So this one is the registered ID. Okay. The place I'm going to take to you for the cash flow model is this. I'm going to index. In the index, okay, like here we go. The point here is this cash flow model is now going to become the part of your own file. I am creating a copy for that. This file is getting created. ओपनिंग बैलेंस देखकर पेमेंट कर रहे हैं तो उससे हमेशा टेंशन रहेगी। हर रोज जैसे मुर्गी नहीं होती, रोज चुक 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 करती रहती है, डेली 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 हम पेमेंट की टेंशन के अंदर रहते हैं। But that is not the case. I am going to sheet navigator. On the right hand side there is a entry cash flow model daily. Cash flow model daily. Okay, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कैश फ्लो मॉडल को यूज कर रहे हैं? क्या आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कैश फ्लो मॉडल को यूज कर रहे हैं? ओके, जय कुमार जी, ये अभी आपसे ओपन नहीं होगा। इसलिए ओपन नहीं होगा क्योंकि ओनली रजिस्टर्ड पीपल आर एबल टू ओपन दिस जीएसए ऑनलाइन। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो या ओके, राइट। So let me ask from everybody, are you using cash flow model in your accounting software? If yes, then please type yes. If no, then please type no in the chat box. Like, पेमेंट करने का बेसिस क्या है? कैसे डिसाइड करते हो किसको पेमेंट करनी है? यस संजय नरवाल जी, आई नो, वी वर्क टुगेदर एंड वी क्रिएटेड दैट कैश फ्लो मॉडल। यू आर अमेजिंग संजय जी। ओके, नो, यस, नो, नो, यस, नो। कविंदर जी, यस। कविंदर जी, रिप्लाई इन पैनलिस्ट एंड ऑल अटेंडीज, पैनलिस्ट एंड ऑल अटेंडीज। Atul Sani, yes, but do not know how to use it. Okay, right. So today I'm going to explain that. Yes, my dear friend. Yes. So cash flow model need to be implemented in your accounting software itself, or you can use this sheet. Okay. Sushant Bhatia ji, you are also requested to reply to panelists and all attendees so that all can read your remarks. I'm a subscriber so far, started using it. Okay, got it. Atul Sani, please explain. I'm doing that. So everybody, cash flow model is something you need to be very 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 carefully working on that. Okay, चलो मैं आपसे बात करता हूँ इस प्रॉब्लम से। चलो, 1 अप्रैल को मान लीजिए हमारे पास बैलेंस है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपीज इज द ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल टू मी एज ऑन 1 अप्रैल। I can take the latest date also if you so want. Okay, let me take the latest date, no problem. Okay, so let me go to the latest date. Okay, today is what? 24th of. So this cash flow model I have created for a complete financial year. From 1st April to 31st March. Completely this cash flow model has been created. Now what does this cash flow model says? This cash flow model says we have an opening balance. Now plan for पैसा कहां से आएगा? From where the money will come? कस्टमर से आ रहा है तो यहां पर आ गया, if it is coming from the customer, or it is coming from the capital inflow, लोन ले लिया, या we introduce our own capital, or there is other inflow which is also there in the financial summary. Now what is the total? इसमें से कुछ पैसा जो जीएसटी का है उसको निकाल के आप साइड पे कर लो। उसमें से जितनी कलेक्शन आई है रिजर्व के लिए पैसा एलोकेट कर लो। रिजर्व के लिए जो मैंने बताया, परसेंटेज ऑफ कलेक्शन शुड बी गोइंग टू दी कैश रिजर्व।
जो आपने एक्चुअली पैसा कैश रिजर्व में ट्रांसफर किया उसकी फिगर यहां पर मेंशन आ गई। अब बाकी बैलेंस आपके पास बच गया। नाउ यू नीड टू मेक पेमेंट अंडर द थ्री हेड, इसेंशियल, ड्यूटीज एंड टैक्सेस और प्रायोरिटी। और जो पैसा बचेगा वो हम दे देंगे अपने वेंडर्स को फीफो बेसिस के ऊपर। सबसे पुरानी पेमेंट सबसे पहले हम कर देंगे। तो चलो हम समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो हम चलते हैं 24 अक्टूबर को। मान लीजिए 24 अक्टूबर, अब 24 अक्टूबर को 1 लाख रुपया है, 1 लाख इज अवेलेबल विद मी। अब जो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर आ रही है मेरे पास, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, अभी मैं इसको जीरो कर देता हूं, मैंने इसको जीरो कर दिया, मुझे नहीं पता कितनी कलेक्शन आनी है, जीरो कर दिया। ओके, अच्छा, अब इसेंशियल, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये देखो बाकी सब जीरो हो गया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब जो इसेंशियल है मेरी, ये है मेरे इसेंशियल, मुझे जाना पड़ेगा इसेंशियल। तो यानी कि जो पेमेंट्स मुझे करनी है उसकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए, पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। मैं इसेंशियल की प्लानिंग करता हूं 24 अक्टूबर। तो हम क्या करेंगे, जो भी पेमेंट हमने करनी है इसेंशियल की शीट में गए, उसमें जाने के बाद हम चले गए अपना उन डेट्स के पास, लेट्स गो देयर। ओके, तो आपको पता लगा कि 24 अक्टूबर को ना, ओके, आपने मान लो इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करनी है, कितनी करनी है, 75,000 की। तो मैंने 75,000 मेंशन कर दिया। व्हेन आई मेंशन इट हियर, द फार्मूला विल ऑटोमेटिकली पिक। यस, तो मैंने 24 अक्टूबर को 75,000 की पेमेंट करनी है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं सो दैट यू आर एबल टू रिलेट। राइट, तो मुझे अगर 75,000 की पेमेंट करनी है, तो यानी कि 24 अक्टूबर को क्या पेमेंट आ गई, 75,000 की। अब मुझे इस दिन जो है फैक्ट्री का रेंट भी देना है। अब फैक्ट्री का रेंट मुझे पे करना है, तो वो मुझे पे करना है 50,000 का। बड़ा सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, 50,000 का। यानी कि इस दिन की पेमेंट मेरी कितनी हो गई है, इस दिन की पेमेंट मेरी 75,000 प्लस 50,000, ये पेमेंट हो जाएगी 1,25,000। चलो कैश फ्लो मॉडल के अंदर चलते हैं। अब 24 अक्टूबर के अंदर देखो इसेंशियल की पेमेंट कितनी आ गई, द पेमेंट इज 1,25,000। द बैलेंस अवेलेबल विद मी वाज रुपीज 1 लाख, बट आई नीड टू पे हाउ मच, 1,25,000 टुवर्ड्स द इसेंशियल। ओके, if I will make a payment of 1,25,000, what will be the net balance available with me? The balance will be minus 25,000, minus 25,000। Why? Because 1 लाख था, 75 की पेमेंट करनी है। अच्छा, तो अब क्या होगा, मैं इसकी पेमेंट नहीं कर सकता, मैं इसकी पेमेंट नहीं कर सकता। ओके, मैं जरा इसकी पेबल की फिगर को भी ठीक कर देता हूं। लेट मी गो टू दी पेबल फिगर आल्सो। इसको मैं हटा देता हूं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। नाउ कैन यू सी, अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 25,000 का। अभी हम 24 अक्टूबर को जब पेमेंट करने के लिए बैठे हैं, तो इस सिंगल शीट में हमें पूरी की पूरी जानकारी अवेलेबल है कि 1 लाख मेरे पास है, 1,25,000 की पेमेंट करनी है। अगर 1,25 की पेमेंट करेंगे तो -25 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसेंशियल के अंदर, कि भाई यहां पर तो हम 50,000 की पेमेंट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी को हटाओ यहां से और इलेक्ट्रिसिटी को मेंशन करो यहां पर। जब भी आप नेक्स्ट अवेलेबल आपके पास होगा, तो अब देखो कैश फ्लो डेली के अंदर क्या आ गया, कैश फ्लो डेली के अंदर आ गया 1 लाख मेरे पास था, इसेंशियल में 75,000 पे करूंगा, 25,000 का मेरे पास फिर भी बैलेंस अवेलेबल रहेगा। इस दिन का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग बन जाएगा। ओके, ये वाली अभी मैं हटा देता हूं, अगले दिन का ओपनिंग बन जाएगा 25,000 का। अब देखो लेकिन इसेंशियल को हमने नेक्स्ट डे में ट्रांसफर कर दिया था 50,000 को।
अब नेक्स्ट डे कैसे ट्रांसफर किया था, यहाँ पे ट्रांसफर किया था ना, ये वाला 25 अक्टूबर के अंदर 50,000 हमने ट्रांसफर कर दिया था। ना लुक एट द कैश फ्लो मॉडल। अब अगर यहाँ पर 50,000 होगा तो मेरे पास -25,000 हो जाएगा। दैट मीन टू से कि अब मेरी पेमेंट भी उससे आनी चाहिए, कस्टमर से पेमेंट आनी चाहिए। अब पेमेंट से जो कस्टमर से एक्सपेक्टेड है वो मैं अपने कैश फ्लो इंजन वाले लोगों को रेफर करूंगा। वो कह रहे हैं कि हाँ जी सर अब पेमेंट आने की संभावना है, तो मैंने क्या किया, पहली बात तो आई विल बी मेकिंग पेमेंट ऑन अ वीकली बेसिस, नॉट ऑन अ डेली बेसिस, अदरवाइज आई विल बी इन अ सूप। तो नाउ people are saying that payment is expected 2 lakh rupees on 26 October, or say whatever the estimation they are giving, 5 lakh will be coming on this date, 1 lakh is coming on this date। तो अब आपने फ्यूचर की प्रोजेक्शन यहां पर डाली, इतने आने की संभावना है। इफ द पेमेंट इज एक्सपेक्टेड टू कम इन द फ्यूचर देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान, अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। ओके, अब अगर मेरे पास फ्यूचर में वो पेमेंट आने की संभावना है तो व्हेन यू लुक एट द कैश फ्लो मॉडल, इफ अगर आप सोचो हफ्ते का कैश फ्लो, जैसे आप कैलेंडर नहीं बनाते अपना, जैसे आप कैलेंडर के अंदर इवेंट डिसाइड करते हैं, ओके मंडे आई विल बी डूइंग दिस मीटिंग, ट्यूसडे आई विल बी डूइंग दैट मीटिंग, सैटरडे आई विल बी गोइंग देयर। सिमिलरली व्हाई नॉट टू फ्रीज 1 week of your cash flow in the cash flow model itself? क्यों ना एक महीने की पहले से प्लानिंग कर दे। मैंने तो पूरे एक साल की प्लानिंग करके इसके अंदर डाल दिया। देखो इसेंशियल के अंदर वेजेस हर महीने की 10 तारीख को पे करनी है, तो लिखो कितना एस्टिमेट पे करना होता है आपको। जनरेटर एक्सपेंसेस एवरी मंथ ऑन 30th आई मेक अ पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी ऑन दिस डे, salary on this day। These are the payment which you can make a posting for throughout the year, and at the same time if any duties and taxes to be paid, all the posting you can do here, and if any priority need to be paid, that you can post here, if any other payable are there, you can make a payable entry there। all the aspect will automatically come where, all the aspect will come in the कैश फ्लो डेली। अब कैश फ्लो डेली के अंदर आ गया तो अब आपको पता है नॉट ओनली आज मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, जब जब मुझे फ्यूचर में प्लानिंग करनी है वो मेरे पास कितना है, एंड आई नीड टू क्रिएट अ सफिशिएंट रिजर्व अवेलेबल विद मी सो दैट आई एम एबल टू प्लान द एक्सपेंडिचर। ऐसा थोड़ी है कि आज हम पास्ट का ओपनिंग बैलेंस देखकर फिर पेमेंटें करना शुरू कर देंगे। अब हम फ्यूचर को भी देखना शुरू करें, कब कब कितना पैसा आने की संभावना है और कब कब हम किसको पेमेंट कर सकते हैं, सो दैट राइटफुली यू आर एबल टू फोकस ऑन योर बिजनेस। तभी तो मैं कहता हूं माय डियर फ्रेंड, दैट इज व्हाई आई से कि बिजनेस के अंदर हमेशा एक ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए कि भैया कम से कम कितनी सेल करें, व्हाट शुड बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल दैट माय बिजनेस इन द प्रॉफिट। एंड एट द सेम टाइम आई ऑलवेज टॉक अबाउट टू मेंटेन कैश रिजर्व फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ एक्सपेंसेस पेमेंट के बराबर का रिजर्व होना ही चाहिए। if you have a limit of say 5 crore, then use only 4 crore so that all the essential can be made, and opening balance will always be there. Opening balance will always be there, my dear friend. Those who are making payment looking at the opening balance only, my request to them is that create a cash reserve for the expenses for next 6 months and make the payment of the payable depending upon your cash inflow, so that you are dealing with those items, you are able to those items which are really creating cash flow on your business, and you are able to work based upon this cash flow model। देखो आपने क्या करना है, ये मैंने आपको बड़ा ब्रीफ में स्पेसिफिक आज की 5 AM मास्टर क्लास के अंदर बताया। तो जैसे कि आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इफ यू विल गो टू JSA ऑनलाइन ऑन द होम पेज, in JSA online on the home page, if you go there you will see a video is there। the name of the video is cash flow model। this is cash flow model video। in this cash flow model video, step by step, one by one, I have explained everything, every aspect of the cash flow model। this video is for the time duration of approximately 1 hour 3 minutes, and in this video I am explaining each and every aspect of the cash flow। so those who are already JSA online subscriber, पेमेंट कर दी तो भी ठीक है, नहीं कर दी तो भी ठीक है, चलान बैक डेट के अंदर आपने स्टैंप लगा के those who have already
सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख लो और अपने अकाउंटेंट को दिखा दो. इफ बिजनेस ओनर आर देयर, सी business owner, you are here to work on the business model, not on the integrity. Whatever I am telling to you in this 5 year master class, everything is there for your accounts team. You just need to inform them, delegate them, and if they find any difficulty, if they find any question, if they find anything they are not able to do in the accounting software, they are not able to understand this, as a business owner, as a financial controller, you need to demand from your team that भैया मेरे को तो कैश फ्लो मॉडल बना के दो, मेरे को तो दिखाओ किस तरह से पेमेंट हो रही है, मुझे तो ना केवल अगले हफ्ते की बल्कि पूरे साल की प्लानिंग चाहिए. तो ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो आप इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए वॉच दिस वीडियो ना. इन्वेस्टमेंट करवा ली, वो पुराने 10 साल 20 साल पुराने जमाने खत्म हो चुके हैं. आज की डेट के अंदर सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है. अगर आप एक बस सिंप्लिसिटी, तभी आपको यहाँ पर कलर स्कीम नजर आ रही थी. जीएसटी पहले ही पे कर चुके हो इन टर्म्स. So the point I'm making here is cash flow model. What the point is? Cash flow model. So those who are not using cash flow model, please start doing that. Okay. Those who are already using, are you really creating the wealth? Orbit change karo. If you are making a growth of 10%, 20% in your business, I'm not interested. I'm not interested. I'm interested in growth of 100%, 200%, 300% in the profit. This is what the commitment is. ब्रह्मास्त्र मिला है आपको. ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र से ना अपने ऑर्बिट को चेंज करो. सब्सिक्वेंट अमेजिंग कैश रिच बिजनेस बनाओ अपना. छोटी छोटी चीजों में इस्तेमाल मत करो. आ जाओ, लेट्स प्ले बिग. You learn, you understand, get an idea, have one-to-one interaction with me, and give it to your account team. Give it to your account team and let them prepare. They will ask whatever the question they are asking. Okay, Atul Saini is saying, sir, is there any video that explain all the sheet and how to use it? Right now we are living only financial summary. Financial summary is the starting point. Financial summary is the starting point. First do the expertise in financial summary and then go to next, then go to next, then go to next. There are 5 main aspects. Number 1 is financial summary. Number 2 is cash flow model. Number 3 is working capital calculator. Number 4 is MIS from account and finance. Number 5 is I think मैंने उसका पहले नाम दे दिया. Cash flow model, net worth, profit and loss account, MIS from account and finance. These are the key aspect. ये देखो, ये मैंने सारी की सारी इसके सामने दी हुई है. Just have a look at this. Just have a look at this, my dear friend. Financial summary, cash flow model, working capital, MIS from accounts and finance, and net worth. 1, 2, 3, 4, 5. These are the minimum 5. And apart from that, there are 3000 more things. और हर मास्टर क्लास के अंदर मैं सबको explain कर रहा हूँ. अच्छा, not only GSC online subscriber, but everybody, because I am on a mission to educate and enlighten all humanity on this earth so that they are able to use this small and simple technique. So what is required to be done is that, let me answer you. सुशांत जी ने कहा, थैंक्स फॉर डायरेक्टिंग और फोकस ऑन दिस फॉर्मेट. यस, इट इज इंपॉर्टेंट. पुनीत जी, they always give excuse, we are super busy to make this document. Not a problem. पुनीत जी, मैं ना आपके लिए एक और एस्पेक्ट लेके आ रहा हूँ. मैं एक अकाउंटेंट की ट्रेनिंग के लिए 1 डे की वर्कशॉप लेकर आऊंगा, जहां पर आप स्पेसिफिकली अपने अकाउंटेंट को भेजना. उस अकाउंटेंट जी को मैं सुबह 10 बजे से लेके शाम तक अलग से ट्रेन करूंगा. वो अकाउंटेंट की होगी, अलग से मैं बना रहा हूँ, उसका भी सोल्यूशन पक्का निकाल रहा हूँ. डोंट वरी, सो दैट कि उनका वो बिजनेस वाला काम ना हट जाए, तो वो राइट जगह पे फोकस करें. अभी बिजी पता क्यों है? राइट नाउ द अकाउंट्स पीपल आर बिजी बिकॉज दे आर डूइंग रिकंसिलिएशन ऑफ द फर्स्ट मिस्टेक क्रेडिटर्स. दे आर बिजी इन मेकिंग डिटेल कि कौन कौन से कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं. अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट बनाने में बिजी हैं. दे आर मेकिंग बिजी एवरी डे. उन्होंने पेमेंट वगैरह के चेक बनाने होते हैं. जब आज की 3 मिस्टेक से हम लर्न करेंगे तो उनका टाइम तो फ्री होने वाला ही है. और उनको बोलो, आस्क योर क्वेश्चन व्हेन दे विल गो टू दिस वेबसाइट JSA ऑनलाइन. यहाँ पर देखो ना, ये पॉइंट है. आपके अकाउंटेंट को बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, जस्ट टेल देम टू आस्क योर क्वेश्चन. Just type your question, but the problem you are facing, and then submit. After doing that,
All their question will be resolved by my team. Okay, those who are not JSC online subscriber, मैं उनको बताता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूँ आपको. But you are able to relate with this aspect कि ओपनिंग बैलेंस से, ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से आपको कैश फ्लो मैनेज नहीं करना. यू नीड टू मैनेज योर कैश फ्लो बेस्ड अपॉन व्हाट, बेस्ड अपॉन व्हाट, cash flow model. If you are able to relate with me on this point, then please type cash flow model in the chat box so that I am able to know, ताकि मुझे पता लगे कि आपको अवेयरनेस हो गई है कैश फ्लो मॉडल की. Cash flow model. If you are aware, then oh, CFM. Yes, if you are aware, then type कैश फ्लो मॉडल. ऑल दी पार्टिसिपेंट, आप सुबह 5 बजे उठकर आए हो और अपना इतना कीमती समय एकदम फ्रेशनेस के साथ में लगाया है. एंड द मैजिक इज डेलीगेशन. द मैजिक इज लाई इन डेलीगेशन. ऐसा नहीं होता कि अब आपको बिल्कुल हरकुलिस की तरह मेहनत करने पे लग जाना है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. अर्ली इन द मॉर्निंग यू गेट एन आइडिया, make a note and khatak delegate to the right person in your company, and that right person will create. Okay, you can have one to one with me and I will approve your cash flow model so that कि आपका पूरा का पूरा कंट्रोल रहे कैश फ्लो के ऊपर. Get idea sir ji in the morning. This is the purpose of this session. Every morning I'm doing with you. देखो कैश फ्लो में क्यों इतनी बात कर रहा हूं, बिकॉज कैश फ्लो मास्टरी इज माय पैशन. और इसके ऊपर जो मैंने किताब लिखी ना, फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल, लोगों को इतनी पसंद आ रही है. एवरी डे आई एम गेटिंग कॉल एंड वन टू वन रिक्वेस्ट एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग द वेरियस पैराग्राफ रिटन इन दिस बुक कैश फ्लो के ऊपर. बहुत सिंपल इसको कर दिया है. एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल फॉर योर लव एंड अमेजिंग लव दैट यू आर गिविंग. तो कुछ लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं 5 AM मास्टर क्लास को. मे आई नो हाउ मेनी, पुनीत जी, यू जस्ट परचेज द बुक. थैंक यू फॉर योर लव. ओके, कुछ लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग एक से ज्यादा बार अटेंड कर चुके हैं. इफ यू आर अटेंडिंग फर्स्ट टाइम द 5 AM वर्कशॉप, देन प्लीज टाइप 1. इफ यू आर अटेंडिंग फॉर मोर देन 1, then please type 2 or 3 or whatever the time you have attended. Okay, 1 1 1 1 1 1. Okay, many people are attending for the first time. 1 1 1, sometime 3, sometime 2 1 1. Okay, some people 4 3, multiple 1. Okay, so many people are attending for the first time. Those who are attending for the first time and also those who are attending for the multiple 2 3 time, let me tell you in a very unique and different way. See, I am a chartered accountant by profession and I have a 20 years of experience. मैंने ना सीए बनने के बाद इन किताबों की पूरी रिसर्च कर दी, इन मेंटर के साथ में पर्सनली मिला, इनसे इंटरेक्शन की, लाखों रुपए मैंने खर्च किए कोचिंग के ऊपर. एक तरफ इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऊपर से ये फाइनेंस के धुरंधर, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी एंड टोनी रॉबिन्सन, मनी मास्टर द गेम, 7 सिंपल स्टेप टू फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड हमारे अपने प्यारे टी हार्व एकर, सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड. I studied in depth that how this principle can really be applied in our businesses and how can we make the money, and I did that. It become a game changer. It become a total game changer. पहले ना मेरा पूरा फोकस था अपने 1 to 1 छोटे छोटे फोकस के ऊपर काम करता था, कभी पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचा ही नहीं था. The journey was not that easy. Journey was not that easy. I belong to a mediocre family और बस अपना, आपको पता ही है, जो 10 15 20 हज़ार रुपए की छोटी मोटी मंथली इनकम हो जाया करती थी और उसके ऊपर काम करते थे, और जो कोई काम करवाने के लिए आ गया उसका काम कर दिया. बट व्हेन आई रियली कम टू नो अबाउट इट, द लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग, द लाइफ इज ऑल अबाउट कंट्रीब्यूटिंग, द लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग rich everybody's life and bringing a amazing smile in the life of the people. That become a transformational journey for me. एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जिसने पूरी तरीके से ना मेरी लाइफ को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए लगा दिया. मेरा एक क्लाइंट था, वो बिल्कुल सुसाइड करने वाला था क्योंकि ड्यू टू कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट बेड़ा गर्क हो चुका था कैश फ्लो का. बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल का पता नहीं, लॉन्ग टर्म के पैसों को शॉर्ट टर्म में लगा रखा है, शॉर्ट टर्म के पैसों को लॉन्ग टर्म में लगा रखा है, वेंडर उससे बार बार फॉलो अप कर रहे हैं, और ऐसी हालत हो गई थी. वो कहता है मेरा सब मोह माया से जंजाल उठ चुका है एंड ही वाज अबाउट टू सुसाइड. तो मैंने उसके साथ दिल लगा के काम किया और आज की डेट में वो
कैश रिच बिजनेस रन कर रहा है, उसके बाद ना मैंने इसको अपना मिशन बना लिया है लाइफ का। मिशन अपनी लाइफ का बना लिया है कि ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द कैश फ्लो, यार हम बिजनेस ओनर इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सभी लोग दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि उसके बावजूद ये परेशानी, 24 घंटे पैसे की परेशानी परेशानी परेशानी। ये बात है कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट की। You really need to learn how to manage the cash flow. And then I made a mission, and my mission is, I want a mission. I want a mission to enlighten 1 million people by 2021, so that they experience financial freedom with financial control in their company and life. And I'm truly thankful to you, Atul Saini ji. You are with me on this mission, and I'm really, really, truly thankful to you. And I request everybody to be a part of this mission. Now, how can you become the part of your mission? You need to transform your business. You need to make your business profitable and cash rich. When your own business is profitable, when your own business is cash rich, then what will happen? You will be happy, your family will be happy, your vendor are happy because they are getting timely payment, your employee are happy because they are getting timely salary, and government is happy because they are getting taxes. Bankers will be happy, investors will be happy, and the whole humanity will be happy. So as a business owner, when you are doing profitable and cash rich business, you have a huge impact because you are mobilizing the resources on this universe. Only business entrepreneur are taking that risk to mobilize all the resources on the universe. And I am with you, totally I am with you, my dear friend. अच्छा, अभी ना मैंने काम किया है 879 बिजनेस ओनर के साथ में, जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ है। उनके साथ तो पर्सनली उनके कंप्यूटर पे, एक्सेल पे और उनके टैली पे, बिजी, सैप और एकल बान के ऊपर काम करके उनके कैश फ्लो को मैंने ट्रांसफॉर्म किया। or through my program, through my book, I got an opportunity to impact the life of more than 15,000 business owners so far, and the mission is continued, my dear friend. अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कैश फ्लो की बातें ही करते हो या उसका आपकी जिंदगी के ऊपर भी असर है। एक दिन तो मुझे ये पूछा कि मिलेनियर बिलियनियर बना ले सरदार जी, ताड़ा की हाल है। पैसे बन रहे हो पैसे। So when people say कि पैसे बन रहे हो, तो ऐसे देखो, doing the cash flow mastery, doing the cash flow mastery principle apply everywhere, my dear friend, everywhere. जो मैंने आपसे प्रिंसिपल शेयर किए हैं ना, जो प्रिंसिपल शेयर किए हैं, those principle work in everybody's life. See, in my life, what happened? I was driving a simple Mercedes, not a desire, desiring for Mercedes. I was driving desire and deserving for Mercedes. ऐसा करता था। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद, बिजनेस की, एम्प्लॉय की, सोशल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद, आई गॉट माई ड्रीम कार। सी, आई एम नॉट, I'm not saying this thing only because the reason to boast something, but my dear friend, please understand, cash flow mastery is very, very important, because this cash flow mastery give you freedom in the area of work, in the area of health, in the area of sports, in the area of travel, in the area of family, in the area of spirituality, and in the area of your society. You have sufficient appropriate money available with you when you have the cash flow practice in your life. लेकिन business owner क्या कर रहे हैं? They do not know what is the accurate monthly profit they are dealing. They are dealing with the cash flow mismanagement. Financial discipline नहीं है. There is a constant pressure of finance impacting their personal life and health. Dealing with the last minute compliances and do not have checks and control in accounting software. आज मैंने 3 मिस्टेक की बात की, ये तीनों की तीनों मिस्टेक could have been taken care by the checks and control in the accounting software. Is it there? No. Why it is not there? Do it now. क्यों? बिजनेस तो पूरी फायर के साथ में कर रहे हैं, बट व्हेन द क्वेश्चन ऑफ नंबर कम्स, टोटल कंफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ द नंबर। कैश फ्लो के ट्रैप के अंदर हैं हम बिजनेस ओनर। तो क्या करें? कैश फ्लो डैशबोर्ड पे काम करना, माय डियर फ्रेंड। द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ ऑल द वर्किंग दैट यू आर डूइंग इन द बैकग्राउंड, जस्ट लाइक अ मर्सिडीज डैशबोर्ड, दिस इज द काइंड ऑफ डैशबोर्ड I want to see in each one of your business. Please create this dashboard.
Please create this cash flow dashboard, which is telling you what is the cash and bank balance, what is the liquid deposit, and how many months sufficient fund is available with you. Don't just look at the opening balance, how the cash flow trend is going to be there for next 12 months, आज के लिए नहीं, अगले 12 महीनों के लिए. What is the revenue, TVC, GP, fixed cost, NP, and from where the money is coming, where the money is going, and what are the ratio. GP 20%, NP 8%, ROI 18%. ROI should be 35% or 9% or 3% or more than that. Debt equity ratio kya hai? What is my price earning ratio? Go for the valuation, go for the next level. What is my cash conversion cycle? My debtor days, my inventory days, my creditor days. What is the constituent of my current asset? कितने पैसे लेने हैं अकाउंट रिसीवेबल, अरे कितने का माल पड़ा है इन्वेंट्री, कैश और बैंक में कितना है, अदर कितने हैं, करंट लायबिलिटी कितनी है, किसको देने हैं. मेरी करंट रेशियो 2.4 आ रही है. व्हाट शुड बी द प्लान वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट इज द एक्चुअल वर्किंग कैपिटल? डू आई नो दैट? If I don't know that, then I don't deserve to do the business. Please don't do business. Don't do business if you don't have the cash flow dashboard. If you are a businessman, then you need to have a cash flow dashboard. This is my demand. This is my demand. How many of you present in this, how many of you present in this 5-year masterclass are using cash flow dashboard? Do you have cash flow dashboard? If yes, then please type yes. If no, then please be authentic and type no, because today is the first day of the rest of your life. And बिना स्कोर बोर्ड के आईपीएल का मैच खेल रहे हो, चेन्नई वर्सेस मुंबई. बिना स्कोर बोर्ड के मारो चौके छक्के, क्या रिजल्ट निकलेगा? कुछ भी नहीं. सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, बिजनेस, बिजीनेस, बिजीनेस. थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग. अगर नहीं है ना तो कैश फ्लो का डैशबोर्ड बनाओ, स्कोर बोर्ड तो देखो. आप सचिन तेंदुलकर हो ना अपनी फील्ड के, अगर आप सचिन तेंदुलकर हो तो मार दो चौके छक्के. You need to have a cash flow dashboard. That is my invitation. तो आपको क्या चाहिए? बस आचरेकर ने हल्का सा आपके बैट को सीधा करना है. खटाक स्क्वायर कट मारो, खटाक मारो चौके छक्के. That way, you are Sachin Tendulkar of your business. Look at the score and hit the boundaries. अपने business को fast track के ऊपर लेकर आओ with the power of the cash flow. Cash flow is the life turning point. आज आपका 5 बजे की मास्टर क्लास में आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है. There is something which is very very important. आप जो हो ना, जीएसए ऑनलाइन के एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो, स्कोरबोर्ड आपके पास अवेलेबल है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, तो मेरे से 1-to-1 क्यों नहीं कर रहे? डू दैट. अगर आप जीएसए ऑनलाइन के सब्सक्राइबर नहीं हो तो क्यों नहीं हो? दैट इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क फ्रॉम यू. ओके, देखो, मिलेनियर और बिलेनियर का जो फ्रेमवर्क मैं आपसे बात करता हूं वो ये है कि आपको क्या करना है, प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है. प्रॉफिटेबल, देखो तो सही अपना फाइनेंशियल समरी बना के. बिजनेस मॉडल पे मैं आपके साथ काम करता हूं. बिजनेस मॉडल में मैंने ये देखा है, लोग सिर्फ एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं. प्रोसेस बन जाए, सिस्टम बन जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोसेसेस, सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस मॉडल. शेयर विद मी योर बिजनेस मॉडल एंड आई विल टेल यू वेयर आर द गैप्स इन द 1-to-1. Now what you need to do, you need to monitor the profitable business. कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कैसे पता लगेगा? कैश फ्लो मॉडल से पता लगेगा, फाइनेंशियल समरी से पता लगेगा, कैश फ्लो का डैशबोर्ड मैंने डिस्कस किया ना, इससे पता लगेगा कि वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं, कैश रिच है कि नहीं. अब प्रॉफिट कमा लिया, पैसे आ रहे हैं, तो क्या करें? कैश रिजर्व क्रिएट करना है. व्हाट इज टू बी क्रिएटेड? कैश रिजर्व क्रिएट करना है. कैश रिजर्व कैसे क्रिएट करोगे? परसेंटेज ऑफ कलेक्शन. आप अपनी कलेक्शन का एक स्पेसिफाइड परसेंट, मे बी 1%, मे बी 2%, 3%, 4%, 5%, 0.01%, वट एवर द परसेंटेज यू डिसाइड, प्लीज ट्रांसफर दैट अमाउंट टू दी खड़क कैश रिजर्व अकाउंट. अब कर लिया कैश रिजर्व में, तो क्या करें? नाउ दैट कैश रिजर्व नीड टू बी मैनेज्ड विद द 6 jar टेक्नोलॉजी. नाउ व्हाट इज दैट 6 jar टेक्नोलॉजी? 6 jar टेक्नोलॉजी सेज दैट whatever the amount that you are getting, you need to put into the jar system, divide into the percentage. Say if 50,000 has been taken from the business,
then 55% in necessity account, 10% in financial freedom account, 10% in long-term saving for spending, 10% in education account, 10% in play account, 5% in give account. Bifurcate this amount. You can have your 6 bank account, just like I have. I have 2 bank in ICICI, I have 2 bank in SBI, I have 2 bank in HDFC. So first put that money in these bank account, and from these bank account make investments wherever you want, like stock, mutual fund, passive income vehicle, real estate, any other investment. If you want to make a big purchase for a rainy day fund, for a vacation, for unexpected medical expenditure, you really need to invest and create your cash flow, and invest that money in the jar. So which are these jar? Look at this. Look at this. Now, this is the framework, my dear friend. This is the framework. How many of you are able to relate with me? How many of you are able to relate with me? If you are able to relate with me, please type relate in the chat box with the whole discussion. Yes, some people are asking कि ये sheets कहाँ से मिलेंगी? All these sheets are available on JSA Online. I'm just going to give you an opportunity about the JSA Online. Here is the JSA Online. This is a platform I have created. This legacy of my 20 year I am giving to each one of you. 20 साल की कड़ी मेहनत तपस्या करने के बाद मैंने JSA Online बनाया है। और अगर आप JSA ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक अभी राइट नाउ, मैं उसका लिंक अभी आपके पास राइट नाउ चैट बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं। नाउ यू आर गोइंग टू गेट द लिंक ऑफ JSA ऑनलाइन। आप एक बार ना JSA ऑनलाइन के लिंक के ऊपर क्लिक करके देखो, देयर इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट आई एम गोइंग टू चार्ज फ्रॉम यू, इन विच 1 year सर्विस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। अच्छा, आप उसको सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 AM की वर्कशॉप के लिए आप हमेशा इनवाइटेड हो। आपने मास्टर क्लास के अंदर पार्टिसिपेट किया, आपको नेक्स्ट मास्टर क्लास के लिए पता लगता रहेगा। सारे के सारे लोग एक बार, जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं गुड, जो सब्सक्राइबर नहीं है वो एक बार जरा इस लिंक पे क्लिक करके देखो, वेरी नॉमिनल अमाउंट इज देयर। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, दिस इज माय डियर फ्रेंड JSA ऑनलाइन। यहाँ पर जैसे आप ओपन JSA ऑनलाइन करेंगे ना, तो आप अपनी रजिस्टर्ड आईडी से करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, अदरवाइज आपको एरर दिखाएगा 404, यानी कि आप सब्सक्राइबर नहीं हैं। टू बिकम दी सब्सक्राइबर यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर। तो क्या करना है, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, और JSA ऑनलाइन सब्सक्राइबर आप भी सुन लो, दोबारा सुन लो भाई, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, आप या आपकी टीम जो है आस्क योर क्वेश्चन पे जाए ना, अपना क्वेश्चन पूछे, जिस भी चैलेंज से आप डील कर रहे हो, आई एम रेडी टू सपोर्ट यू, आई एम रेडी टू मेक अ डिफरेंस। और सबसे अमेजिंग बात क्या है, सबसे अमेजिंग बात क्या है कि इसके अंदर जो नई नई वीडियोस है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका एक और सेक्शन में क्रिएट करने वाला हूँ। एक, आप लोगों ने क्योंकि ऑलरेडी अटेंड कर ली है आज की मास्टर क्लास, तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री आपको एक कैश फ्लो की 1 day की वर्कशॉप भी दे रहा हूँ। उपासना इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद यू, उपासना इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद यू। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, ये देखो ये पेमेंट लिंक आपके सामने आ गया, यहां पर आप क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आई हैव 8 minutes विद यू एंड लेट मी टेल यू, इन दिस 8 minute, this one, in this JSA online subscriber, I will take only 1 minute. And if you have any question, if you have any question, or if you want to meet me one to one, how many of you are interested to meet one to one with me on Zoom? If you are interested one to one with me, just type one to one in the chat box. Just type one to one in the chat box. I will have one to one with you. In exclusive meeting, we will talk about how we can transform your business. And if you have any specific question, specific personalized question, then you can simply type one to one. My EA will organize a Zoom meeting with you. She will send a link to you, and we will specifically discuss about any of the concern that you are dealing with regard to use of cash flow model in your business, how to make it profitable, how to make cash rich. This is what I'm going to discuss about that. See why? Because all those who are interested to do one to one, please type one to one and type in the chat box. And in the chat box, na panelists and attendees select karo so that it reaches to my team. My team will be able to make us save this chat and accordingly get back to you. Okay, so those who are interested to do the one to one, please do that. Type one to one in chat. So what I'm saying that
यहाँ पर जब मैंने आपसे बात की ना जेएससी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करने की, तो इसके अंदर कुछ लोग अभी भी शायद ये वाला पोर्शन यूज नहीं कर रहे। कौन सा पोर्शन? आप अपना जो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उस टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत 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 सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, इतने सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, बट सिंस यू आर नॉट यूजिंग, तो अकाउंट पेबल की रिपोर्ट उसके अंदर नहीं आ रही, अकाउंट रिसीवेबल की उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही। तो अब वो कहाँ से देखना है? देखो वो सारे के सारे आंसर ऊपर जाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है टैली ट्रेनिंग, अगर आप टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर जाएंगे तो वेरियस वीडियोस आर अवेलेबल, like how to create, delete ledger, receipt voucher, trial balance and job work, cost center, check printing, payroll, ratio analysis, security control, how to prepare indent in tally, grn, all the aspect I have created in this area. Okay, now let me come to the main point. The main point here is कैश फ्लो मास्टरी की वर्कशॉप हम कब कर रहे हैं? नाउ यू आर एलिजिबल फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट्री कैश फ्लो मास्टरी बिकॉज यू आर देयर विद मी सिंस बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन टू नाउ, एंड यू विल बी गेटिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ प्लीज 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 आस्क योर क्वेश्चन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, जस्ट रेज योर हैंड और आस्क इन द चैट बॉक्स। आई एम रेडी टू आंसर दैट, आई एम रेडी टू आंसर दैट। श्रुति जी, बिजी की पूरी ट्रेनिंग अवेलेबल है, ऑल बिजी ट्रेनिंग इज अवेलेबल। एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वी विल हेल्प यू, सपोर्ट यू इन इम्प्लीमेंटिंग। सी मैं तो प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे क्या करना है, आपसे 1 to 1 करूंगा। आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है देखेंगे, उसके अंदर आपकी अकाउंट्स टीम को पूरी तरह से, अगर आप ऑलरेडी अकाउंट से हैं तो आपको पूरा ट्रेन करेंगे और करवाएंगे, जिससे कि आप हो सके कि टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी की पूरी ट्रेनिंग अवेलेबल है, इसी के अंदर ही, इसी जेएसए ऑनलाइन के अंदर ही पूरी ट्रेनिंग अवेलेबल है। इसके अलावा मेरी टीम के साथ में आप 1 to 1 ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो मेरी टीम भी आपके कंप्यूटर को एनी डेस्क के पर लेकर ट्रेनिंग करेगी। इसी पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मैं चाहता हूं कि आप अपने कैश फ्लो मॉडल को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर ले और बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना ले। दैट इज द रीजन आज मैंने 3 बिग मिस्टेक आपसे शेयर की हैं। नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आपको ना मैं अगले 5 AM के अंदर एक बड़ा अमेजिंग टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट देने वाला हूं, फाइनेंशियल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। ये नेक्स्ट सैटरडे को आएगा एंड यू विल लव इट। जैसे होता है ना साइंटिफिक टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट आप अपने बिजनेस में लगाएंगे तो बिजनेस में लगाने के बाद आपको पता लगेगा कि आपके बिजनेस का टेस्ट क्या निकल कर आया। नेक्स्ट सैटरडे 5 AM में मैं फाइनेंशियल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं और देने वाला हूं। तो श्रुति जी ने कहा इफ वी नीड टू हायर अकाउंटेंट थ्रू योर कंपनी पानीपत, देखो अकाउंटेंट का हम टेक्निकल राउंड लेंगे, उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को चेक करेंगे और उसको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करेंगे। लोकल पानीपत के अंदर वो अपॉइंट हो जाएगा। देयर इज अ टैलेंट अवेलेबल थ्रू आउट द इंडिया, बट द ओनली एस्पेक्ट इज उस टैलेंट को हंट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रेन करना। that work we will be able to do for you. We need to do 1 to 1 for that. अच्छा, एस डी खन्ना जी ने कहा क्या मेरा 1 to 1 लंच से पहले हो सकता है 10 बजे से 1 बजे के बीच में? यस उपासना, माई ईए विल शेड्यूल दैट विद यू, शेड्यूल विद दैट यू। Thank you very much everybody, all participants. There are more than 50 participants are there from 5 AM to 6:30 and I truly acknowledge each one of you. Is it a value for you? Was that a value for you? If it was a value for you, then please type value in the chat box if it was a value for you. What is your feedback for today's session? Okay, you got a value. Thank you. Thank you. Thank you very much for participating in today's 5 AM masterclass. और मैं आप सबके साथ में ना हर सैटरडे को सुबह 5 बजे आके नए से नए नगेट्स देने वाला हूं और आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने वाला हूं, बिकॉज दैट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। ओके, तो अच्छा आपको प्रीवियस मास्टर क्लास जैसे, हाँ जी भवानी जी डन, जितने भी प्रीवियस 5 AM मास्टर क्लास हुए हैं वो मैं सारे के सारे जैसे ऑनलाइन के ऊपर अपलोड करने जा रहा हूं। और अभी जो लोग जेएसए ऑनलाइन के सब्सक्राइबर नहीं हैं
उनके लिए मैं एक बार एक लिंक दोबारा से यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर अभी उनको कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो पूछ लो। वी स्टिल हैव 2 minutes टू गो। वी स्टार्ट ऑन टाइम, वी कंप्लीट ऑन टाइम, and we take the investment of 90 minutes of your life. Some people have joined for the first time, and I'm truly thankful, truly thankful from the depth of my heart, from the depth of my heart for being part of this session. आप में से कुछ लोग जो मेरे साथ 1-to-1 जूम कॉल करना चाहते हैं, जैसे कोई पानीपत के अकाउंटेंट को लेकर क्वेश्चंस हैं, तो आपके उन सभी क्वेश्चंस को मैं 1-to-1 के अंदर आंसर कर दूंगा, सो दैट कि आप, क्योंकि 5 बजे उठकर आए हैं और आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने पहला कदम उठाया है, अब 10 कदम मैं उठाऊंगा, क्योंकि मिशन है ना मेरी लाइफ का। सो आई एम वर्किंग विद सुपर एक्साइटेड एंड energetic and out of the box thinking and awesome people, एंड आप इंस्पायर करेंगे और पूरी दुनिया को और प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस को रन करेंगे। वंस अगेन ब्रह्म मुहूर्त स्ट्रेट टू माइंड जाता है। थैंक यू कुलभूषण गोयल जी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। तो आप ना टू पैनलिस्ट एंड ऑल अटेंडी कर दो। आपने ना इतना बढ़िया बात लिखी है, ये सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है। अभी भी ना बहुत सारे लोगों के मैसेज सिर्फ मेरे पास दिखाई देते हैं। देर आर मोर देन 50 पीपल। तो ये लिखा आपने, यस। तो ये ना आप पैनलिस्ट एंड अटेंडीज में लिख दिया करो। Have a good day and have a good day to everybody. Time right now is 6:30. So thank you very much everybody for participating in today's masterclass, and we are good to go. Bye. Have a great week ahead. Thank you. Thank you.